What is up guys, welcome back to the channel HO Anirudh. Yet again another video on this project Mark 1 VRS. So now we'll begin with the interior mods. As you can tell, मैं already have started digging in on the interior and मैंने ABC pillar उतार लिए हैं पीछे वाले, जितने भी प्लास्टिक ट्रिम उतार लिए, A pillar उतार दिया है and now we are taking off the roof क्योंकि we are planning to do something with all these plastic trims and once I take off the headliner as well, उसके बाद I'm dropping off the car for getting the seats and the door cards redone. Interior video काफ़ी special होने वाली है. We have something ready for the steering wheel as well. तो and also the gear knob is going to come out great. And ये सब ये plastic trims आप देख रहे हो सारी missing है क्योंकि हर चीज़ हमारी planned out है. And even the smaller bits like this rear view mirror आप देख सकते हो क्रीम कलर का and it's not the correct one for this car क्योंकि हमारा जो करेक्ट हमारा जो मिरर आता है उसमें हमारा रहता है रेन सेंसर रहता है इसमें, सो इसमें से करेक्ट वन नहीं है. एंड ऑल्सो इंटीरियर बिट्स आर ब्रोकन एंड मिसिंग एज वेल. तो इंटीरियर ऑल एंड ऑल wasn't in the best shape, so it's going to come out great. First we'll take off this headliner and then I'll update you guys and then we can go ahead and drop the car off for the seats, and I'll also show you what kind of seat design we are going for, and it's actually going to look amazing. Once we are there, I'll show you the seat covers and I'll explain you a little bit more and how cool they are going to look. So let's go. So everything is off. ये रहे मेरे B pillars, हमारे shades, हमारे handles and हमारी rear parcel tray और also हमारा headliner. Now the car is basically completely stripped and yeah, we are ready to take the car to the interior shop now. Also a small change, I don't know if you can tell, I have replaced the airbag क्योंकि जो पुराने वाला था वो यहाँ से completely उसका texture उड़ चुका था and it was completely faded. So I've gotten a new one and ये मैंने replace कर दी without any charge. This is I replaced it for free of cost क्योंकि this looks a little more fresh. तो this has been done. And also ये जो हमारे इंटीरियर पार्ट्स है ये सारे जा चुके हैं for some work, so they'll be back very soon and once they're back I'll show you those as well. So these are our new seat covers and as you can see these are inspired by the Mark 3 VRS covers and you can see यहाँ पे हमने blue accents दिए हैं क्योंकि हमारा पूरा थीम गाड़ी का is blue and silver. तो यहाँ पे सिल्वर में VRS logo engraved है and we have this blue accent and blue stitching around the seat covers, and also center में you'll notice we have suede, so it gives a very premium feel and premium look to the car. And also again these are inspired by Mark 3, तो उनमें भी बीच में you get suede. So we have left our seats at the interior shop and खाली एक सीट पे मैं गाड़ी चला के वापस आ गया and we have started with rest of the work जिसके लिए we anyways needed our panels to be completely off. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि our sunroof is getting replaced क्योंकि जो हमारी current sunroof है that doesn't work. Just our sunroof. यहाँ पे आप देख सकते हो we have replacement for our door locks and door locks का cable. Not a single bolt is left unturned at this point on this car. We are changing our master window control switch also. And it's the next day and you can see हमारी seats हमें वापस मिल चुकी है and just look at the final result. क्या प्यारी लगी है seats and इतनी बढ़िया fitting है because it was removed to the old seat covers and till the foam and foam भी repair की है and this is how it finally turned out and I believe it's like next to OEM. and यहाँ पे हमारा जो कल काम पेंडिंग रह गया था हमारे डोर लॉक्स केबल का वो यहाँ पे कंटिन्यू हम कर रहे हैं एंड हमारा जो फ्रंट लेफ्ट डोर पे एज यू कैन सी काम हो रहा है इसके हार्नेस में इशू है, सो वी आर रिपेयरिंग द हार्नेस ऑल्सो.
And just like that, हमारी sunroof हो गई install and we are back in the game. Our sunroof is again working. So here we have the car back from the denter. As you can see, पूरे गाड़ी पे हमने ड्राई डेंटिंग करा ली है एंड सभी पैनल्स पे बेसिकली लगी हुई थी मार्क एंड हैड सम डिफेक्ट्स टू द बॉडी लाइन. तो सबसे ज़्यादा बोनट पे थे एंड ऑल बेसिकली ऑल द पैन एक्सेप्ट दिस डिक्की, एक्सेप्ट द बूट, सभी पैनल्स पे ड्राई डेंटिंग हुई है. यू कांट टेल बिकॉज इट्स डार्क एंड स्पेशली ये जो हमारा रनिंग बोर्ड है, रनिंग बोर्ड काफ़ी ज़्यादा डैमेज था. तो रनिंग बोर्ड भी रिपेयर हुआ है एंड जो डोर की फिटमेंट थी, दोनों डोर की ख़राब थी, तो वो भी रिपेयर हो गई है. सो नाउ यू कैन टेल रनिंग बोर्ड की भी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, दो जगह पे पूरा अंदर तक दबा हुआ था. सो दिस हैज़ बीन रिपेयर्ड एंड हर पैनल पे बेसिकली डेंटिंग का काम हुआ है. यहाँ पे हुड पे काफ़ी ज़्यादा डेंट्स थे. बेसिकली हमने ये डेंटिंग इसलिए करवाई है क्योंकि नाउ वी नीड टू गेट, जो हमारे जितने भी डोर्स हैं हम सबको हम सब पे साउंड डेंटिंग करवाने वाले, तो उससे पहले वी नीड टू टेक आउट द डेंट्स, ताकि क्योंकि इसके बाद हमारा जो पेंट वर्क है, द ओनर हैज़ डिसाइडेड टू गेट इट डन हिमसेल्फ बिकॉज हिज फ्रेंड हैज़ अ वर्कशॉप बैक इन हैदराबाद. तो वहाँ पे पेंट का काम होगा. तो खाली ड्राई डेंटिंग मुझे इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि हमने इस पे ड्राई डेंटिंग इसलिए हमें करवानी पड़ी क्योंकि हमारा अगर साउंड डेंटिंग एक बार मटेरियल लग गया, उसके बाद इट विल बी अ कंप्लीट वेस्ट अगर वो उतारना पड़ेगा फॉर द पेंटिंग, फॉर द डेंटिंग पार्ट. तो इसलिए खाली ड्राई डेंटिंग हमने कर दी है. सो इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज हम जा रहे हैं गाड़ी ड्रॉप ऑफ करने फॉर द ऑडियो. लेट मी शो यू व्हाट ऑल स्टफ वी आर पुटिंग इट. फर्स्टली वी हैव सोनी का 13 सेंटीमीटर में रियर स्पीकर्स. फ्रंट पे वी हैव कंपोनेंट्स, हमारी वायरिंग किट, साउंड डेडनिंग मटेरियल. इट्स अ फुल रोल, पूरी कार के लिए इनफ होगा. एंड पायनियर की ब्लूटूथ एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले वाली टच स्क्रीन. और यू कैन सी करंटली दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द स्टफ. जो हमारा वूफर एंड हमारा जो एम्प है दैट इज़ ऑलरेडी एट द शॉप क्योंकि हमने उसके कस्टम इंक्लोजर्स बनवाए. So we drop off this also, and once everything is done, the entire interior should look amazing. Another day, and this is the amp we are going to use, 1000 watt. and ये रहा हमारा Pioneer का चैम्पियन सीरीज़ का सबवूफर. सो इसको पावर करने के लिए वी नीडेड दिस. एंड इसमें 4 चैनल है, 2 चैनल इसके, 2 चैनल फ्रंट स्पीकर के जो हम डाल रहे हैं. दिस इज द इंक्लोजर और दूसरे साइड का हमारा आएगा एम्प. यहाँ पे हम एम्प माउंट करेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट फॉलोइंग द थीम ऑफ द कार, वी हैव गॉटन द सीट बेल्ट्स आल्सो डन इन ब्लू. एंड हमारे जो डोर कार्ड की स्टिचिंग है दैट इज आल्सो ब्लू. चलो हमारा एक चक्कर लग रहा है मार्केट का फॉर सम स्क्रूज फॉर द डोर कार्ड्स, रियर व्यू कैमरा एंड सम एलईडी स्ट्रिप्स फॉर आर इंक्लोजर जो हमने वूफर के लिए बनवाए. आप वायरिंग जैसे राउट की है उसकी क्वालिटी चेकआउट करो, टर्मिनल के एंड चेकआउट करो. दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ चीप एंड अ गुड क्वालिटी जॉब.
And finally हमारा हो गया ऑडियो का काम complete and see how amazing it looks and looks OEM plus. So now we'll move to the cosmetics of the engine bay क्योंकि ये हमारे बिल्ड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड क्लाइंट ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की है टू मोर एम्फेसिस ऑन द एस्थेटिक्स ऑफ द इंजन बे. एक्चुअली ब्रश यहाँ पे पहुँचता नहीं पॉलिशर पर, तो इसलिए हमें ये पार्ट कराना पड़ेगा पेंट. वील गेट इट डन इन बॉडी कलर जो है सिल्वर, सेम कलर में पेंट करेंगे. So we'll be getting our engine bay also painted in the body shade which is the silver and ये पूरा engine bay paint करेंगे and also our valve cover as we explained previously. और यहाँ पे हमारा prep शुरू हो रहा है brake caliper paint के लिए. Brake calipers also we are getting done in blue. यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इंजन बे को फॉर इट्स पेंट. एज यू स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड एफर्ट इनटू द इंजन बे, तो जितने भी छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, जितने भी मुझे न्यू मिले, आई बॉट न्यू एंड इट शुड ब्रिंग अप द लुक ऑफ द इंजन बे. यू डोंट नो दिस इज द पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का रिजर्वॉयर. we'll be putting this one new and बाकी जो छोटी मोटी कैप्स और कंटेनर्स है वो भी सब न्यू डालेंगे and it should look like a brand new engine bay when it's done. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कुछ पार्ट्स रेडी हो चुके हैं. हमने प्राइमर कर दिया एंड प्रेप कर दिया इनको एंड वी आर गोइंग टू पेंट दिस इन हमारा जो एक्सेंट कलर दैट इज ब्लू. हम ये कुछ पार्ट्स इंजन बे में ब्लू पेंट करने वाले. पूरा हमारा वैल्व कवर. तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ बाय हमारे कैलिपर कैरियर्स. इनको पेंट करेंगे एंड कैलिपर्स हम गाड़ी पे लगे हुए इनको पेंट करने. यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस हमारी स्ट्रट ब्रेस को पेंट करने का. दिस इज ऑल्सो गेटिंग पेंटेड इन ब्लू. नाउ इट्स टाइम फॉर पेंटिंग आवर इंजन बे. अभी हम इसे प्रोसेस स्टार्ट करें हमारे इंजन बे पेंट करने का. अभी देख सकते हो कितना बढ़िया आउटपुट आया है हमारे इस पेंट का. So moving on from here, we will start with our valve cover. Valve cover को भी हम बॉडी कलर में ही पेंट करने वाले हैं and half of it it's going to be in chrome जो हमने पॉलिश करवाया था. Paint has been done. बॉडी कलर हमने इस पे किया है. Can't wait to take out the tape and reveal the chrome part of it. It looks absolutely sick. ये हमारा वॉशर का cap. दिस इज़ द नेक्स्ट डे और ये हमारा सारा पेंट सूख चुका है. दिस इज हाउ द वैल्व कवर लुक्स. ये और हमारा कैप. लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल शो यू द इंजन बे. ये रही हमारी स्ट्रट ब्रेस. This is how it looks. This is how the engine bay came out. For reference,
ऐसा दिखता था पहले, दिस येलो, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। सो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आप ये देख सकते हो जो हमारी पुरानी वायरिंग हार्नेस है, दिस इज़ इन अ पुअर कंडीशन, so we'll be replacing it with a plug and play harness, which comes sleeved. As you can see, it looks very beautiful. So we'll be cutting off the original one and replacing it with this one, and then it will be a modular harness. हमारा साइड बाय साइड दूसरा काम भी चल रहा है। हमने व्हील्स वापस लगा दिए एंड व्हील्स में हमने न्यू लोगोस भी लगा दिए। ये रही हमारी ओल्ड हार्नेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो कनेक्टर है वो कनेक्टर ही टूटे हुए हैं। सो दिस कॉजेज मिस फायरिंग इशूज़, एंड ये काफ़ी कॉमन इशूज़ है मार्क 1 में कि इन कनेक्टर्स के कारण और इस हार्नेस के कारण मिस फायर करती है कार। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी हार्नेस तो कंप्लीट हो गई है इंस्टॉल, बट आप इस कॉइल पैक की हालत देखो, हाउ मच ऑयल इट्स लीकिंग इनसाइड द वाल्व कवर। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मैं एक N75 वाल्व जो हमारा रहता है उसकी वायर कट करके एक्सटेंड करा रहा हूँ, सो दैट इट डजंट गो ओवर आवर टर्बो इनलेट पाइप। जस्ट दी स्मॉल डिटेल्स जिससे इंजन पे एक्चुअली काफ़ी क्लीन लगेगा, एंड वायरिंग फालतू में आपके सामने नहीं दिखेगी आंखों के सामने। अभी हम वाल्व कवर अपना उतार रहे हैं। वील बी रिप्लेसिंग इट विद द वन वी हैव पेंटेड, एंड ऑल्सो हम अपना वाल्व कवर गैस्केट भी रिप्लेस करने वाले हैं। सब में ऑयल जा रहा था। ये रहा हमारा न्यू वाल्व कवर वर्सेस द ओल्ड वाल्व कवर। जस्ट चेक आउट द डिफरेंस, कितना बढ़िया लग रहा है कंपेयर टू ओल्ड वन। एंड ऑल्सो वी हैव आवर NGK BKR7E प्लग जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं अलॉन्ग विद द R8 कॉइल पैड्स। कैसा लग रहा है? आई थिंक इट लुक्स अमेजिंग। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, जितना दबेगा दबा दो, उसी के लिए प्लेट बनाया हुआ है बस। अगर वो पेंट सूख जाएगा तो वो भी डाल देंगे। हाँ बस 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 वो उसके लिए प्लेट है ना मेरे पास, इसके ऊपर। और ये हमारा गाड़ी का फर्स्ट स्टार्टअप भी हो गया। आफ्टर द हार्नेस, our plugs, our coil packs, everything has been done, and the car sounds so good, and कोई misfiring नहीं, कोई कुछ नहीं। सक्सेस। हमने इंस्टॉल की हमारी न्यू
ignition pack harness, हमारी coil pack harness हमने install की, and the install was absolutely perfect. Now the harness is modular, that means it comes off just by unplugging it. Plus we installed new coil packs and plugs. उससे the car runs so smooth. I'll just show you. Look how stable the idle is, and it almost sounds as if the car is not even on, minus the exhaust obviously because it's loud, but it's quiet. इंजन बे में से एक भी एक आवाज़ नहीं है, बिल्कुल quiet है इंजन. Also there was a major leak in the coil pack ka gasket, as I had shown previously, and the oil was just up till almost 4 or 5 on the coil packs, on two of the coil packs actually out of 4, but all 4 were leaking oil, and वो plugs भी dirty कर रहा था उससे. And also इस कार में wiring for some reason was done very poorly, and जो इसमें previously जो wiring का काम था बहुत ज़्यादा शॉर्टी था, एंड बहुत ज़्यादा ही रोड साइड मैकेनिक टाइप था, एंड इट वाज कम्प्लीटली अ मैस. तो वो सारा आज रिपेयर हुआ है, एंड जो लूम में से प्लास्टिक कवरिंग मिसिंग थी वो सारे हमने रिपेयर किए हैं, उनको टेप अप किया है, एंड द वायरिंग हैज़ बीन कम्प्लीटली क्लीनड अप. एंड ऑल्सो द मेन थिंग दैट कम्प्लीटली ब्रॉट एवरीथिंग टुगेदर वाज द इंजन बे पेंटिंग. जो हमने इंजन बे के स्ट्रट टावर्स थे, हमारा फायरवॉल था, उनको हमने पेंट किया बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली डल. तो उससे बहुत ज़्यादा ही डेड लग रहा था एंड डल लग रहा था हमारा इंजन बे. तो वो पेंट होने से सब कुछ एक्चुअली बहुत निखर के आया. एंड ऑल्सो वी गॉट आवर वाल्व कवर, half of it polished and half of it painted in the same shade as our body color. So, and also we got our calipers painted in the blue, in the same shade जो हमारी सारी silicone holes है. And just before we end the video, let me just again give you a tour of how everything looks currently. So this is how the engine bay looks. अभी भी इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है. So let's start from here. हमने क्या क्या काम किए है. So we took everything off. हमने जितनी चीज़ें possible थी हमने सारी निकाली for this entire part to get painted, and as you can see, and it came out absolutely beautiful. And जो हमारा सेम सिल्वर का शेड है बॉडी का, हमने वो अंदर पेंट कराया है. एंड हेयर वी टुक दिस आउट. जितना इसको हम क्लीन कर सकते वो किया, बिकॉज दिस कैन नॉट बी पेंटेड. अगर पेंट भी करते वो पेंट फ्लेक ऑफ होके निकल जाता. सो एंड न्यू में दिस वॉजंट अवेलेबल एनीवेयर. तो हमने इसको जितना क्लीन हो सकता हमने क्लीन किया. इसका जो कैप था हमने सेम शेड में ब्लू में पेंट करा है, जो कि हमने कैलिपर्स और बाकी चीज़ें हमारी ब्लू है वो. वी गॉट दिस न्यू पावर स्टीयरिंग का रिजर्वायर, गॉट इट इंस्टॉल न्यू. हमने ये इंस्टॉल की, ये पहले इंस्टॉल करनी पड़ी थी बिकॉज ओल्ड वन ब्रोक. एंड कमिंग ओवर हेयर हमने काफ़ी सारी वायरिंग्स को रिपेयर किया है, एंड बेसिकली मेड एवरीथिंग वेरी क्लीन. एंड कमिंग टू द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये रहा हमारा वाल्व कवर. थोड़ा सा गंदा हो गया, वी विल हैव टू अगेन बफ इट अप. तो ये इतना पार्ट was polished to a mirror shine, and rest was again painted in the same silver as the valve, the engine bay, and which is the same color as the body. हमने इंस्टॉल किए R8 के coil packs, न्यू NG के BKR7E plugs, और हमने न्यू इंस्टॉल की हमारी modular harness. Also I was doing this injector harness को tuck in. अभी completely नहीं हुआ है. Once this is also done, no wires will be visible. ये खाली fuel rail दिखेगी, similar to what I have done in my own car. Again, this entire thing was painted. इसको जितना clean हो सके I have managed to clean it up. Again, this was all painted, and this is how everything looks pretty much. Also managed to clean up this route for our this piping work for our catch can. नीचे भी हमने वायरिंग हार्नेस को जितना हो सका क्लीन किया है. अभी 2 चीज़ें बची. हमारा बैटरी बॉक्स, बैटरी हमने न्यू डाली है. बैटरी बॉक्स हमने इस पर लगाना है, एंड हमारी जो हीट शील्ड है ऊपर पड़ी है वो हम इंस्टॉल करेंगे. एंड बेसिकली दैट विल बी ऑल ऑफ इट. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. खाली अभी स्टड पे, बेसिकली अभी स्टड पे मिसिंग है खाली.
वो हम इंस्टॉल करेंगे, देन इट विल बी ऑल डन। एंड एक बार ऑब्वियसली इसको हम क्लीन अप करेंगे, एक बार पेट्रोल वॉश और सम डीप इंजन क्लीनिंग करेंगे एंड इट शुड लुक मिंट। ऑल्सो काइंड ऑफ प्रिटी जेलस क्योंकि इट एक्चुअली केम आउट ब्यूटिफुल एंड इट समवॉट इवन लुक्स बेटर दैन माई ओन सेटअप। ऑल्सो हाँ, एक और चीज़ हमारी जो मिसिंग है वो हमारी जो अडेप्टर प्लेट है, हम वो इंस्टॉल करेंगे कल। दैट इज़ ऑल्सो गेट इट पेंटेड इन द सेम ब्लू, तो आई विल गेट इट टुमारो। एंड अगेन दैट किट इज़ ऑन सेल एंड इट विल बी लाइव ऑन द पेज एंड यू कैन परचेज इट फॉर प्रीटी चीप, क्योंकि वो सेम जो किट आया ECS में, इट कम्स अप टू बी अराउंड 30-35,000 करंटली। अभी आई एम वर्किंग ऑन द हेडलाइट्स। अगर चाहिए तो उसका आई विल मोस्ट लाइकली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम वर्किंग ऑन समथिंग वेरी कूल। तो इसका हेडलाइट्स अभी बन रहा है एंड अभी के लिए ओनली थिंग लेफ्ट इनसाइड द इंजन बे इज़ ऑब्वियसली दिस अडेप्टर प्लेट, हमारी स्ट्रट प्लेट एंड आर टर्बो। तो खाली ये काम बचा है हमारा अभी एंड द लास्ट थिंग वुड बी द 2-step tune and then the car will be all done. Chalo, I'll see you once I get on with installing the turbo, which most likely will be in a separate video, tuning video में होगी, but इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले we'll install our headlights and also finish up the remaining of the interior work. So now it's time that we start working on the headlights and as you can see, ये पर्सनली मैंने आज तक दिस इज़ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ हेडलाइट्स आई हैव सीन मार्क 1 पे। इसके कनेक्टर, दोनों कनेक्टर टूटे हुए हैं एंड ऑल्सो देयर इज़ अ गेपिंग होल ऑन द बॉडी ऑफ इट एंड ऑल्सो फॉर सम रीज़न इसमें खाली 2 ही स्क्रू है एंड इट्स पार्शली ओपन बोथ ऑफ देम एंड एक रैंडम वायर इसमें से निकल रही है बाहर। सो एंड ऑब्वियसली वेरी कॉमन मार्क 1 इशू, वेरी येलो हेडलाइट्स। तो हम ये सब रिपेयर करने वाले, होपफुली ये जो होल वगैरह मैं रिपेयर कर पाऊँ, बट दिस इज़ द करंट कंडीशन। हेज़ अ बेटर लुक एंड दिस इज, इसका क्रोम पार्ट इज़ ऑल्सो मिसिंग, ये ऐसा दिखता है करंटली। तो टेक अ गुड लुक। अभी वंस वी आर डन विद दिस इट विल बी लुकिंग अमेजिंग होपफुली। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दिस small little piece which I have created and 3D printed, ये actually will be a game changer क्योंकि इसके बाद हम ये जो हमारी स्टॉक हेडलाइट्स हैं इन कन्वर्ट कर पाएंगे लो बीम को हाई बीम। जो हमारी खाली लो बीम सिंगल बीम प्रोजेक्टर है, हम इसे बाई जीनन या बाई LED में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टे ट्यून्ड क्योंकि दिस विल बी ऑन सेल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर प्रोटोटाइप सेट and let's see how it turns out. So stay tuned and हमारा जो मेरा पेज है चीज़ कस्टम, उस पर आपको इसकी लिस्टिंग भी मिल जाएगी, so you can go ahead and purchase it for your own headlights. So let's go, let's start by tearing open these headlights and see अंदर क्या कंडीशन है, क्योंकि हमें हार्नेस भी डेफिनेटली इसकी चेंज करनी पड़ेगी अंदर से दोनों की। So let's go. मैंने अभी तक इसमें से ये एक स्क्रू उतारा है एंड दिस इज़ द ओनली वन ऑन देयर। तो खाली 2 स्क्रू पे ही पूरी हेडलाइट टिकी हुई थी। सो नाउ वी कैन जस्ट ओपन इट अप। ऊफ काफ़ी बुरी हालत में हेडलाइट। लेट्स ओपन इट अप एंड सी हम इसके हार्डनेस का क्या कर सकते हैं। आई वाज वंडरिंग कि इसमें जो राइट साइड की हेडलाइट है वो जलती क्यों नहीं है एंड वी हैव आवर आंसर, बिकॉज द बल्ब इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन एंड ये पूरा अंदर से प्रोजेक्टर अगर देख सकते हो, इट हैज़ अ होल straight through it. So it was basically a fire hazard at this point, but ये चलना ही बंद हो गया। But you can see how dangerous it can be अगर ये आग पकड़ ले, because of the heat it can get nasty, then it can get very troublesome अगर ये आग पकड़ ले। So just a PSA, अगर एटलीस्ट तुम कुछ अपग्रेड नहीं करे, एटलीस्ट अपना जो हेडलाइट खोल के अपनी हार्नेस रिपेयर कर लो, क्योंकि हार्नेस अगर ऐसी दिखती है तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट हार्नेस हमें इतनी अप टू डेट रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हेडलाइट ऑलमोस्ट 17-18 साल पुरानी है एंड वायर्स अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। सो या
वैसे मैं हार्नेस भी एक्चुअली आई सेल द हार्नेस, इट्स फॉर 1800 फॉर द पेयर। तो आप अपनी हेडलाइट की हार्नेस खोल के मुझे बेच सकते हो। आई कैन क्रिएट अ न्यू हार्नेस फॉर यू, सो दैट इज़। तो ये रहा हमारा फॉग भी कुछ ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है, एज यू कैन सी कोरोडेड भी है क्योंकि हेडलाइट खुली हुई थी पीछे से, तो पानी जा के इट्स कोरोडेड। नॉट एन इशू, क्योंकि हमारे पास फॉग लैम्प के लिए भी एक बहुत बढ़िया अपग्रेड अवेलेबल है जो मैंने अपनी VRS में भी किया था। तो या लेट्स गो अहेड एंड टेक एवरीथिंग ऑफ। वायरिंग तो बाहर आ गई है। नाउ वील स्टार्ट टेकिंग ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्टर्स। नाउ दैट आई एम नोटिसिंग, इस पे जो स्क्रैचेस है काफ़ी ज़्यादा डीप है, लाइक इट्स कैचिंग माई नेल। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये हम कम्प्लीटली निकाल पाएंगे। ऑल्सो अगर ये हम निकाल भी पाएँ, ये जो माइक्रो क्रैकिंग है अंदर से जो लेंस के दोनों लेंस के बीच में आती है, वो एक तरीके से इम्पॉसिबल है इसको निकालना। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू आउट ऑफ इट, क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, सो वील हैव टू वर्क विद व्हाट वी हैव। सो या ये बाद की प्रॉब्लम है, फर्स्ट वी नीड टू फिगर आउट दिस एंड द वायरिंग। ये आ गया हमारा लो बीम का प्रोजेक्टर एंड इट्स कम्प्लीटली गॉन, एज यू कैन सी पूरा जल चुका है। और ये रहा हमारा फॉग लैम्प का प्रोजेक्टर। वंस वी हैव टेकन दिस ऑफ, ये है हमारा बाकी का प्रोजेक्टर। तो बेसिकली इसके नीचे एक रिवेट है, इसको हमें ग्राइंड करके उतारना है एंड इट विल बी ऑफ। तो ये हम ग्राइंड करके इसको रिवेट को निकाल देंगे, तो दिस विल बी ऑफ। ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें खाली फ्रंट हाफ ऑफ द प्रोजेक्टर चाहिए एंड दिस इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोजेक्टर जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये हमारी साइड में है हमारी 3D प्रिंटेड प्लेट एंड ये हमारा बाइजीनन प्रोजेक्टर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फ्लैंज हम इसको स्टॉक वाले प्रोजेक्टर को हम कर पाएंगे यहाँ पे बाउंड। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक। ये मैं लेंस अंदर से थोड़ा सा क्लीन करूँगा एंड वी हैव पेंटेड इट ब्लू ताकि इट गिव्स दैट लुक कि इट्स एक डीमन लाइट ऑन है, बट जबकि देयर इज़ नो डीमन लाइट, जस्ट स्ट्रेट अप जस्ट अ प्रोजेक्टर विद अ कलर्ड बैक हाउसिंग। उसके कारण ये उसे एक लुक देता है जैसे इट्स ब्लू फ्रॉम द इनसाइड एंड इट हैज़ अ ब्लू लेंस। काफ़ी कूल ट्रिक है, मैंने एक पहले लॉरा की हेडलाइट में ट्राई की थी, इट कम्स आउट लुकिंग रियली क्लीन। काफ़ी सटल सा एक इम्प्रूवमेंट है एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो आई जस्ट क्लीन दिस अप, पॉलिश कर दूंगा इस लेंस को, देन वील माउंट इट एंड एक बार चल के हम इसे टेस्ट आउट करेंगे बैटरी पर लगा के डायरेक्टली, थ्रो इसका एग्जैक्टली कैसा आ रहा है एंड देन लेट्स गो फ्रॉम देयर। ये प्रोजेक्टर हो गया है कंप्लीट, हम इसको जा रहे हैं ट्राई करने। LED बल्ब लगती है कि आउटपुट कैसा है एंड इफ एनी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, लेट्स टेस्ट इट आउट। एज यू गाइस सॉ, इसका जो थ्रो था दैट वाज अमेजिंग, बहुत क्रिस्प था एंड वील स्टिक विद दी LED बल्ब्स। मुझे लगा था शायद LED से उतना ज़्यादा इफेक्ट ना आए तो हमें बाइजीनन नहीं डालना पड़े, बट वील स्टिक विद दी LED ताकि ये सिंपलर और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहे सेटअप। एंड ये हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वील नीड इज़ आर फॉग लैम्प। ये फॉग लैम्प को बेसिकली मैंने एंगल ग्राइंडर से कट किया है स्ट्रेट थ्रू, मैंने से अपने कार में भी यही किया था। एंड वी हैव इंस्टॉल्ड अ मिनी बाई LED प्रोजेक्टर। तो व्हाट वील डू इज़, जो हमारा इसका येलो वाला लाइट है वो हम ऑन रखेंगे DRL की तरह, एंड जब हम फॉग लैम्प ऑन करेंगे तो इसकी वाइट लाइट ऑन हो जाएगी। ये रही हमारी हेडलाइट एंड इसे आप देख सकते हो थोड़ी हेजी दिख रही है बिकॉज ये मैंने पॉलिश किया है एंड आई बेसिकली मैंने सैंड डाउन किया है इसको। स्टार्टेड फ्रॉम 220, फिर मैं गया 400, 600, 800 एंड 1000। तो स्मूथ बहुत हो गई एंड जितनी येलोनेस एंड हेजीनेस निकल सकती थी वो निकल गई है। नाउ यू विल सी इस पर एक मैट फिनिश है एंड ये थोड़ा सा डल है बिकॉज इसे या तो हम पॉलिश करेंगे या तो हम क्लियर कोट करेंगे। तो दिस टाइम आई एम ट्राइंग पुटिंग ऑन क्लियर कोट, जो हमारा ऑटोमोटिव ग्रेड क्लियर कोट होता है 2K वाला, हम वो यूज़ करेंगे इस पर एंड ये काफ़ी निखर के आनी चाहिए हेडलाइट। केम आउट क्लीन, very clean. This is the best headlight restoration I have done till date. तो ये बहुत बढ़िया हुआ है एंड फ्यूचर में भी मैं सेम ही प्रोसीजर फॉलो करने वाला हूँ because it came out very clean. Now let's pack everything back. इसको पूरा असेंबली कंप्लीट करते हैं and let's go down and check the wiring if we have done it correctly or not. So let's do it. Headlight हो गई है complete and अभी हम लगा के देखेंगे if it works, everything works fine.
एंड एज यू कैन सी जो मैंने अंदर फ्लैश ब्लू की पेंट की थी, इट लुक्स लाइक डीमन आई. Yeah, so let's go try this all. So this was what I was talking about. ये जो blue दिख रहा है, looks like demon eye. Yeah, so I have plugged in the headlight अभी. Let's go and try it out, and hopefully, fingers crossed, everything works. Let's go. First try. Boom. It's on. ये रही हमारी yellow fog. This is how it looks. काफ़ी अच्छा थ्रो आ रहा है. You can see. Now let's turn on the normal fog lamp, which is supposed to be white. So as you can see now it's white. Now let's turn on the low beams. This is going to be good. ये off करके. Wow. This is how the low beam looks. वो actually उसमें high beam भी already on था. So this is how the low beam looks from inside. ये खाली एक हेडलाइट का थ्रो है. क्या बात है. एंड ये जब हम कर रहे हैं ऑन अपना, और ये है हमारा हाई बीम. ये एक हेडलाइट से ही इतना प्यारा थ्रो आ रहा है. You can see. और एक्चुअली कैमरा जस्टिस भी नहीं कर रहा कि कितना प्यारा थ्रो है इसका. ये रहा हाई बीम पे. Just blinding. So looks like we have success on our hands, and this is actually crazy. तो एक हेडलाइट हो गई पूरी तरीके से कंप्लीट. जो हमने वायरिंग की दैट वाज परफेक्ट. हमारा जो थ्रो था, हमारा जो अपग्रेड था बाइजीन कन्वर्जन का 2.5 इंच पे स्टॉक प्रोजेक्टर को, दैट ऑल्सो टर्न्ड आउट परफेक्ट. और नाउ ओनली थिंग लेफ्ट टू डू इज कंप्लीट द अदर हेडलाइट एंड देन सी कि दोनों का मिला के थ्रो कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी एक हेडलाइट से ही इतना थ्रो है जितना पहले दो में नहीं होगा. एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग अमेजिंग. प्योर वाइट लाइट का थ्रो है और हमारे येलो फॉग लैम्प्स है विच ऑल्सो एक्ट्स एज हमारे DRLs and gives a very cool aesthetic look to the front of the car. चलो यहाँ से भी एक बार थ्रो चेकआउट करते हैं. हमने ये वाला हेडलाइट भी कंप्लीट कर लिया है. एज यू कैन सी, वो अगर याद होगा पहले यहाँ पे पूरा टूटा था एंड देयर वाज अ चंक मिसिंग. तो यहाँ पे तो मैंने प्लास्टिक वेल्ड कर दिया. जहाँ पे देयर वाज अ चंक मिसिंग वहाँ पे मैंने एपॉक्सी से इसको होल फिल कर दिया. सो नाउ इट शुडंट लीक. प्लस जितने भी हमारे स्क्रूज थे इसमें हार्डली 1 या 2 ही स्क्रू लगे हुए थे पहले, बिकॉज जो अंदर के होल्स थे दे वर ऑल कम्प्लीटली स्ट्रिप्ड आउट. तो उनको भी मैंने प्लास्टिक वेल्ड करके न्यू होल्स बनाए हैं. सो बेसिकली उनको फिलअप किया एंड उसमें न्यू थ्रेड डाल के वी हैव पुट न्यू स्क्रूज. सो इट्स कम्प्लीटली टाइट, इट वोंट गेट लूज. तो देयर इज़ नो चांस ऑफ वाटर गेटिंग इनसाइड. अभी खाली एक चीज़ बची है, ये जो यहाँ पे टूटा हुआ था प्रीवियसली जब किसी ने खोलने की कोशिश की होगी, इसको भी हम थोड़ा सा प्लास्टिक वेल्ड करेंगे ताकि देयर इज़ नो चांस कि फ्यूचर में इसमें पानी चल जाए. सो दिस इज़ ऑल्सो डन. नाउ लेट्स गो एंड ट्राई दिस हेडलाइट ऑन. So let's go. This headlight was actually the worst one, and it came out actually pretty clean. And you can see that blue demon eye effect. So yeah, let's try that now. Hopefully, wiring barabar ho, then I'll give it a take some rest. So I thought of updating you guys. ये एक्चुअली खाली इसमें फॉग लैम्प काम कर रहा है एंड नथिंग एल्स. ना मेरा लो बीम काम नहीं कर रहा, हाई बीम काम कर रहा है, वो फॉग लैम्प काम कर रहा है. लो बीम और पार्किंग लाइट जो है वो काम नहीं कर रहा. सो आई वॉज ट्राइंग टू फिगर इट आउट. पहले फॉग भी काम नहीं कर रहा था, तो फॉग का तो फ्यूज़ हो रहा था, दैट आई हैव रिप्लेस. तो फॉग चल रहा है, बट फॉग चल रहा है. सो
मेरा इसमें लो बीम नहीं काम कर रहा और मेरा जो पार्किंग लाइट है यानी कि येलो वाला फॉग लैम्प वो काम नहीं कर रहा. सो आई वॉज थिंकिंग देयर माइट बी एन इशू विद द वायरिंग हार्डनेस इटसेल्फ, बट मैंने डायरेक्ट जब पावर टेस्ट किए पिन 5 और 7 में तो पावर आ रहा है. देन इट मीन्स कि अंदर कुछ इशू है, जबकि आई गॉन थ्रू द इंटायर हार्डनेस, मेरे को कोई इशू दिखा नहीं. शायद मे बी पिन जहाँ पे पिन आउट होता है वहाँ पे कुछ इशू हो. तो लेट्स सी, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट इशू क्यों है. वैसे मेरे हिसाब से तो इशू कोई होना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी. अभी और कोई ऑप्शन नहीं है. वी हैव टू गो थ्रू द वायरिंग हार्डनेस वंस अगेन और हम देखेंगे हमारा लो बीम काम क्यों नहीं कर रहा. बट आई फॉरगॉट टू लाइक टेल यू अबाउट दिस कि जब ये पहले भी जो हेडलाइट थी इसमें काम ही नहीं करता था. इसका ये एक्चुअली पूरी हेडलाइट ही नहीं काम करती थी. एंड तो आई नेवर थॉट मच अबाउट इट. नाउ आई एम थिंकिंग मे बी देयर इज़ एन इशू विद द पिन आउट. यहाँ पे जो पिन्स है वहाँ से जो वायर्स अंदर आती है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उधर ही वायर दी है तो इशू कोई आना नहीं चाहिए. लेट्स सी, ऊपर जाके ये चेक करते हैं. एक और बार मैं चेक करूँगा कि मेरी तरफ से कुछ गलती ना हुई हो. सो या लेट्स गो एंड ट्राई इट आउट. आई थॉट कि ये ख़त्म हो जाएगा एंड आई वाज प्रीटी एक्साइटेड टू सी द कंप्लीट लुक, बट कोई बात नहीं. वील अगेन गो थ्रू दिस एंड आई विल अपडेट यू गाइज. सो या लेट्स गो. सो जो मैंने गलती की थी दैट इज़ इसमें पिन नंबर 5 और 7 नहीं, अनलाइक द पैसेंजर साइड 5 और 7 पिन रहता है. इसमें रहेगा हमारा 8 and 6. तो 8 and 6 रहेगा, 6 being positive and 8 being negative. तो वही वायर आई बिलीव आई हैड डन अपसाइड डाउन, तो उसको रिवर्स करके देखेंगे एंड देन होप फॉर द बेस्ट. इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बॉयज एंड टाइम फॉर राउंड 2. अंदर मैंने वायरिंग स्विच की फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड एक अंदर जो हमारा येलो फॉग लैम्प था उसकी वायर टूट गई थी. आई डोंट नो हाउ, तो वो हमने फिर से फिक्स किया है एंड होपफुली एवरीथिंग शुड वर्क जस्ट फाइन नाउ. सो लेट्स गो एंड ट्राई. देयर यू गो, हमारी येलो फॉग लाइट ऑन हो गई है. दोनों फॉग लाइट ऑन है. नाउ लेट्स ट्राई द लो बीम. मोमेंट ऑफ ट्रूथ एंड लेट्स ट्राई इट एंड या देयर यू गो, ऑन हो गई. खाली वायरिंग का इशू था. या बोथ आर ऑन. या देयर यू गो, हमारे दोनों हाई बीम फॉग लैम्प दोनों ऑन है. अभी लेट्स सी, रात को एक बार ट्राई करेंगे इनका थ्रो आउट. अभी इनका थ्रो कैसे रात को ट्राई करेंगे और देन वील ट्राई एंड फिनिश अप एवरीथिंग एल्स. बट जस्ट टेक अ लुक हाउ क्लीन एवरीथिंग लुक्स. अभी और क्लीन देखेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे बैटरी बॉक्स आएगा. इस कार में मिसिंग था, तो बैटरी बॉक्स डालेंगे और हमारा इनटेक एंड फॉर मोस्ट पार्ट एवरीथिंग विल बी डन. और हमारा फिर से पेंट होने गया स्ट्रट ब्रेस, तो हम स्ट्रट ब्रेस को लगाएंगे जो रिपेयर किया हमने पेंट करके. वी पुट दैट ऑल्सो. सो या लेट्स गो. फाइनली इट्स नाइट टाइम. नाउ लेट्स टेस्ट आउट हाउ गुड द थ्रू इज. तो अंदर से थोड़ी विंडशील्ड गंदी है, बाहर से दिखाते हैं. दिस इज आवर फॉग. अभी थोड़ी मिसअलाइंड है क्योंकि मैंने बोल्ट नहीं डाले, तो यू गेट द आइडिया. दिस इज आवर येलो फॉग, दिस इज आवर वाइट फॉग and this is our low beam. Look how crazy it looks. अंदर से देखो. एंड अभी तो इसमें हाई बीम ऑन भी नहीं है. अब देखो, now we'll turn on the high beam. थ्रो देखो. It's crazy. So I believe we should end this video right now क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो चुकी है. अभी हमारा थोड़ा सा काम बाकी है. एज यू कैन सी ABC पिलर एंड रूफ लाइनर ये लगाना बाकी है एंड हमारे जो गेजेस है वो लगाना बाकी है. फॉर मोस्ट पार्ट वी आर कंप्लीटेड विद द इंटीरियर्स एंड ऑल्सो द एक्सटीरियर. अभी खाली हमारे 2 काम बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में चेंज करेंगे और जो फाइनल टचेस है वो हम करेंगे. तो ये वाली वीडियो अभी के लिए हम एंड करते हैं एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. सो I'll see you in the next one. Till then, stay savage.